to understand the process of breathing. In humans, the main organs responsible for respiration are present in the thoracic cavity. जो ऑर्गन थोरैसिक कैविटी या फिर आपकी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं? जो ऑर्गन आपकी थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस ऑर्गन का नाम क्या है? सर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स। चेस्ट कैविटी में भी तो बताया था लंग्स प्रेजेंट है। In the thorax region, the rib cage and a dome-shaped fibrous tissue known as the diaphragm are observed. Present within the rib cage are the pleural membranes which enclose the lungs. The right lung is divided into 3 lobes: the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only 2 lobes: the left superior and the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi which unite and extend. लंग्स किससे यूनाइटेड है? ब्रोंकाई, 2 पार्टीशंस, एंड द मेन वन इज ट्रैकिया। ट्रैकिया के चारों तरफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या है? हाफ सी टाइप रिंग्स है जिससे उसका कोलैप्स होना प्रिवेंट होता है। अगर ये रिंग्स नहीं होंगे तो फिर वो ट्रैकिया कोलैप्स हो सकता है। जब भी प्रेशर कम हो जाएगा वो कोलैप्स हो जाएगा। Into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood containing RBCs is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs and a transition in their color from bluish-purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of muscular diaphragm, the lungs expand and the air rushes in, resulting in the inflation of alveoli. During exhalation, the diaphragm moves up and the lungs contract. Thus, the alveoli deflate, causing the air to be forced out. This exhaled air is rich in carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is known as respiration, which is approximately 20 times per minute. सर बोलो।
सर जैसे इसने एक बार बोला था ब्रोंकस, जो ब्रोंकस और ब्रोंकाई है सेम चीज है, बस प्लूरल सिमिलर का मतलब वो है, प्लूरल सिंगुलर का फर्क ब्रोंकाई है। ब्रोंक्यूल्स, हाँ, जो कन्वर्जन है वो कैसे है, ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स एंड देन लास्ट एल्वियोलाई। ओके सर। अब ये देखो, नेजल पैसेज, इससे ऊपर क्या था, नोज, देन विंड पाइप का नाम क्या है, ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहाँ जाना है, लंग्स तक। लंग्स में जो ट्रैकिया डिवाइड होता है वो किसमें होता है, ब्रोंकाई, आफ्टर देन ब्रोंक्यूल्स एंड द लास्ट वन इज एल्वियोलाई। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बेसिकली वो क्या है, लंग्स। लंग्स में स्पेसिफाई करें अगर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो वो क्या है, एल्वेलाई। एल्वेलाई ही वो जगह है जहां पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो रहा था, मतलब जो ऑक्सीजन थी वो ट्रांसपोर्ट हो रही थी ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही थी वापस एल्वेलाई में। ये चीज हमने देखी, नोज से एयर रिच इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, ट्रैकिया के थ्रू जा रही है, फिर ब्रोंकाई ब्रोंकियल्स के थ्रू पहुंची एल्वेलाई तक। एल्वेलाई पूरा एक सैक बना हुआ है जहां पे n नंबर ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट है और वहां पे ब्लड कैपिलरीज इस तरीके से अरेंज्ड हैं, वहां पे बहुत ज्यादा नंबर में ब्लड कैपिलरीज अरेंज है ताकि इजीली ऑक्सीजनेटेड हो सके वो ब्लड। ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड के साथ कंबाइन होता है वो ब्लूइश पर्पल से कौन सा कलर चेंज कर रहा है, रेड कलर। तो रेड कलर का बेसिक मतलब है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ब्लूइश पर्पल है तो उस केस में क्या है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है। अब जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अब हीमोग्लोबिन की खास बात है वो तीन चीजों से बाइंड हो सकता है, ऑक्सीजन से भी बाइंड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड हो सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड से भी बाइंड हो सकता है। ऑक्सीजन से भी बाइंड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड हो सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड से भी बाइंड हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा इजीली या सबसे ज्यादा किससे बाइंड होना पसंद करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? सोचो। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अगर ऑप्शन दो हो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी इज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऐड कर दिया जाए तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, देन ऑक्सीजन एंड देन लास्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीमोग्लोबिन की फर्स्ट प्रायोरिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड, देन ऑक्सीजन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब सर कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड is slow poison. कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्लो पॉइजन। कार्बन मोनोऑक्साइड में जनरली आपने सुना होगा कि रात के टाइम पे बंद कमरे में कोयला जला के या अंगीठी जला के नहीं बैठना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। रीजन क्या है उसका, जैसे ही हम कोल बर्न करते हैं उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगा। जैसे ही वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा वो किसी और को बाइंड होने नहीं देगा। अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंची उस केस में ये स्लो पॉइजन की तरह डेथ कॉज कर सकता है। तो अक्सर ऐसा होता है जहां पे अंगीठी वगैरह जला के, मतलब कोई एग्जॉस्ट नहीं है वहां पे, पूरा बंद कमरा है, उस केस में डेथ हो सकती है। रात को सोए सुबह उठे ही नहीं, तो ये केसेस हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करना, अगर कभी ऐसा करते भी हो तो ओपन एयर हो या फिर कोई ना कोई ओपनिंग हो जहां से वो एयर एक्सचेंज हो सके। ठीक है सर 2-3 घंटे में कुछ नहीं होता फिर उससे? क्या कह रहे हो? सर वो जल्दी होता है कि टाइम लेता है? डेथ यस सर, वो 2-3 घंटे में ही हो जाएगी कि थोड़ा टाइम लगेगा? स्लोली, रात को सोए सुबह तक डेथ होगी तुम्हारी। चोकिंग स्टार्ट हो जाएगी। चोकिंग जैसे ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रही तो उस केस में जिस तरीके की चोकिंग होती है ना वो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन गई है वो तो हीमोग्लोबिन से बाइंड ही नहीं हो रही, क्योंकि उसकी जगह तो कौन बाइंड हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड।
इसलिए वो चोकिंग वाला प्रोसेस आ सकता है, फिर चोकिंग के बाद डेथ कॉज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। अब आपने प्रैक्टिकली देखा कि कैसे होता है, अब एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। द नेजल पैसेज इज लिंक्ड विद फाइन हेयर एंड म्यूकस। व्हेन एयर passes through the nasal passage, the dust particles and other impurities present in it are trapped by nasal hairs and mucus so that clean air goes into the lungs. लंग्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो नेजल पैसेज है उसमें ऑलरेडी हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जितने भी डर्ट इंप्योरिटीज होती है वो पहले ही स्टिक हो जाती है नेजल पैसेज में और क्लीन एयर जाती है लंग्स तक। लेकिन कुछ इंप्योरिटीज ऐसी होती हैं जो लंग्स तक पहुंच जाती हैं, जैसे धूम्रपान। धूम्रपान वर्जित है। धूम्रपान इज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग से हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, आपके जो लंग्स हैं वो इम्प्योर हो जाते हैं। द पार्ट ऑफ सर द लंग्स थॉट, नए लग सकते हैं? लंग्स नए लग सकते हैं, आपकी बॉडी में हर एक ऑर्गन नया लग सकता है, प्रोवाइडेड आपकी बॉडी उसे रिजेक्ट ना करे। आपकी बॉडी रिजेक्ट ना करे मतलब जैसे आपके घर में नया नया आपके घर में एक डॉग है, कोई नया मेहमान आता है तो उसमें भौंकता है, इजीली अडेप्ट नहीं होने देता उसे। यस सर, यस सर। सिमिलरली आपकी बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है, कोई भी फॉरेन सेल आता है तो उसे रिजेक्ट करती है पहले। अगर वो, तभी आपने सुना होगा कि जो ब्लड हम चढ़ाते हैं वो सेम चढ़ाते हैं, ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। रीजन क्या है, अगर आप बी पॉजिटिव चढ़ाओगे तो वो रिजेक्ट करेगा उस ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेगी आपकी बॉडी। ओके सर। The part of the throat between the mouth and windpipe is called pharynx. जो माउथ और विंड पाइप के बीच में जो पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, pharynx. From the nasal passage, air enters into the pharynx and then goes into the windpipe, trachea. The trachea is a tube which is commonly known as windpipe. The air coming from the nostrils during breathing passes through trachea. अब ये जो क्वेश्चन आता है, why there is a presence of rings of cartilage, तो उसका आंसर है trachea does not collapse even when there is no air in it because it is supported by rings of soft bones called cartilage. कार्टिलेज की जो रिंग्स है वो प्रेजेंट है, इसी वजह से जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स नहीं होता। अगर वो मसल क्या कहते हैं कार्टिलेज ना हो वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। जैसे ही एयर इनहेल एक्सहेल होगी वो कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स हो जाएगा तो आपका जो पैसेज है वो डैमेज हो सकता है। The upper end of trachea has a voice box called larynx, and the trachea runs down the neck and divides into two smaller tubes called bronchi. At its lower end, the two bronchi are connected to the lungs. The lung lie in the chest cavity or thoracic cavity, which is separated from abdominal cavity by a muscular portion called diaphragm. यही चीजें हमने पढ़ी थी अभी। ट्रैकिया देखा था, ब्रोंकाई देखा था, थोरैसिक कैविटी देखी थी, डायफ्राम देखा था। तो वही सारी चीजें जो अभी हमने वीडियो में देखी, वही सारी थ्योरी लिखी हुई है। ईच ब्रोंकस सिंगुलर ब्रोंकाई होता है, प्लूरल singular bronchi and plural is bronchus, divides in lungs to form a large number of still smaller tubes called bronchioles. Bronchi divide होता है किसमें, bronchioles में। The pouch-like air sacs at the end of smallest bronchioles are called alveoli. Bronchioles के end में क्या है, alveoli है। The walls of alveoli are very thin and they are surrounded by very thin blood capillaries. अभी हमने देखा था कि जितने भी alveoli हैं वो किससे सराउंडेड है, ब्लड कैपिलरी से। ब्लड कैपिलरी से क्यों सराउंडेड है दृष्टि? सर वो गैसेस एक्सचेंज करने होते हैं। बिल्कुल, जो ब्लड हार्ट से आया है लंग्स के पास ऑक्सीजनेट होने के लिए, तो उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए वहां पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है।
सर वेन्स और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है? वेन्स और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है? वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड करती हैं, लेकिन जो ब्लड वेसल्स हैं वेन्स आर्टरीज, आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड आर्टरीज कैरी करेंगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होगा जिसमें ऑक्सीजन कम होगी वो कौन कैरी करेगा? वेन। अब हर जगह तक आर्टरीज नहीं पहुंच सकती, इसलिए वो डिवाइड हो जाती है थिन ट्यूब्स में, जिन्हें क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। वही कैपिलरीज आगे वेन से कनेक्ट होती हैं। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट होता है, डीऑक्सीजनेटेड कहाँ जाता है? वेन्स में, वेन्स के थ्रू। अब उस पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो हम रेस्पिरेशन के बाद पढ़ेंगे, वहां और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखना, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड लेके जाएंगे, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड, और कैपिलरीज थिन ट्यूब्स हैं जो कि पाइपलाइन का काम करती है। जैसे आपके घर में प्लम्बिंग का काम होता है, सिमिलरली यहाँ पे पाइपलाइन का काम करती है कैपिलरीज। सर मतलब कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों हैं? हाँ, कैपिलरीज में दोनों है। ओके। ठीक है। It is in the alveoli that gaseous exchange takes place. गैशियस एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है? एल्वेलाई के अंदर। तो जब भी पूछा जाए द साइट ऑफ रेस्पिरेशन और द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज is termed as site of gaseous exchange is alveoli. The human lungs have been designed to maximize the exchange of gases as follows. There are millions of alveoli in the lungs. The presence of millions of alveoli in the lungs provides a very large area for the exchange of gases, and the availability of large surface area maximize the exchange of gases. जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे थे, सिमिलरली लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट है जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जो गैसेस एक्सचेंज का रेट है वो फास्ट हो जाएगा, तो इजीली गैसेस एक्सचेंज हो सकती है। The alveoli are surrounded by very thin blood vessels called capillaries. जो blood vessels है वो बहुत ज्यादा thin है, क्या बोलते हैं? Capillaries. Carrying blood in them. So the oxygen of air diffuses out from the alveoli walls into the blood. जो ऑक्सीजन है वो एल्वेलाई से कहाँ जाएगी? ब्लड में। ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चली जाएगी? एल्वेलाई में। द ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज द ब्लड passes through the tissue of the body. The oxygen present in it diffuses into the cells. This oxygen combines with the digested food present in the cells to release energy. Carbon dioxide gas is produced as a waste product during the respiration in the cell of the body tissue. जो हमने फर्स्ट क्लास से पढ़ा है कि पूरे रेस्पिरेशन में होता क्या है? ऑक्सीजन इनटेक होती है, फूड के साथ ऑक्सीडाइज करती है, ऑक्सीडाइज करने के बाद एनर्जी प्रोवाइड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, वही पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है जो ऑक्सीजन कैरी की गई थी। द ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स। ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है हर एक पार्ट तक, फिर वो ऑक्सीजन पास होती है डिफरेंट टिश्यूज में, डिफरेंट सेल्स में। सेल्स तक जैसे ही पहुंची, सेल के ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगी किसके साथ? फूड के साथ, और क्या रिलीज कर देगी? एनर्जी। उसके साथ साथ एक गैस और रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो ब्लड वापस ब्लड में डिफ्यूज होती है, डिफ्यूज इनटू द ब्लड, ब्लड उसे कैरी करता है लंग्स तक, लंग्स से वो डिफ्यूज हो जाती है कहाँ पे? एल्वेलाई में। फिर वो ब्रीथ आउट करके डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। डायफ्राम एक्सेल आउट के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। या भूल गए, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है डायफ्राम। डाउनवर्ड जाता है एक्सेल में, एक्सेल के टाइम पे डाउनवर्ड जाता है। हाँ नहीं सर, अपवर्ड। अभी वीडियो में देखा था, जैसे ही लंग्स जो है वो हाँ, सही। रिलैक्स करेंगे, डायफ्राम ऊपर जा रहा है। डायफ्राम उल्टा काम कर रहा है, जैसे रिब्स ऊपर आ रहे हैं, अपवर्ड आ रहे हैं, डायफ्राम डाउनवर्ड जाएगा। रिब्स डाउनवर्ड जा रहे हैं, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिब्स जो डायफ्राम है वो अपवर्ड जाएगा, रिलैक्स करेगा। डायफ्राम हमेशा उल्टा काम मतलब करता है। सर जब सांस ले रहे हो, जब
इन करते हैं, ब्रीद इन करते हैं तब नीचे जाता है, और जब ब्रीद आउट करते हैं तो ऊपर जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। डायफ्राम घर का वो बिगड़ा हुआ बच्चा है जो बाकी बच्चों से उल्टा चलता है। ये बढ़िया था सर। ये बढ़िया नहीं, ये विशाल का एग्जाम्पल था, ये विशाल है, घर का विशाल है डायफ्राम। ठीक है। Blood carries the carbon dioxide back to the lungs where it diffuses into the alveoli. When we breathe out air, the diaphragm and the muscle attached to the ribs relax, due to which our chest cavity contracts and becomes smaller. This contraction movement of the chest pushes out carbon dioxide from the alveoli of the lungs into the trachea, nostrils and then out of the body. जो प्रोसेस हमने पढ़ा था ऑक्सीजन से एल्वेलाई जाने तक का, वही रिपीट हो रहा है लेकिन उल्टा। Then out of the body into the air. In this way, the process of gaseous exchange is completed in the human respiratory system. इस तरीके से पूरा जो रेस्पिरेशन का सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो 1 मार्कर क्वेश्चन है वो सुनो पहले। 1 मार्कर क्या क्या आ सकते हैं? साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस याद है? लक्ष्य, विशाल, सौम्य, दृष्टि? नहीं सर, थोड़ा सा भूल गया सर, एक बार बता दो छोटे में। कहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही थी? सर एल्वियोली। Alveoli. तो alveoli is the site of exchange of gases. Respiratory pigment? Hemoglobin. Hemoglobin. Inhalation? What do you mean by inhalation? Intake of oxygen. Intake of oxygen. Exhalation? Outtake of oxygen. Exhale out of oxygen. Breathe out of oxygen. ठीक है. One breath is comprised of inhalation plus exhalation. When we breathe in air, diaphragm contracts or relax. When we breathe in air, diaphragm contracts or relax. Relax. When we breathe in air, diaphragm contract or relax. Breathe in का मतलब है डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट होना। कैसे सर? जब ब्रीद इन करते हैं तब वो डाउनवर्ड्स आता है ना? जब वो डाउनवर्ड जाता है, इनिशियली उसकी शेप कैसी है? इनिशियली ऐसा है, डोम शेप्ड है। यस सर। जब वो नीचे जाएगा फ्लैट हो रहा है। ठीक है। अब बताओ, इस टाइम पे उसने एरिया ज्यादा कवर किया हुआ है या इस टाइम पे एरिया ज्यादा कवर किया हुआ है? सर दोनों में इक्वली लग रहा है। सर ऊपर वाले में। तो जब भी एरिया ज्यादा कवर करेगा मतलब वो रिलैक्स्ड पोजीशन पे, कॉन्ट्रैक्ट होके छोटा होगा ना। तो जब भी एयर इनसाइड आती है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब भी एयर आउटसाइड जाती है ये रिलैक्स करता है। तो ब्रीद इन में कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीद आउट में रिलैक्स है। ओके सर। ठीक है। पूरा प्रोसेस क्लियर है? ट्रैकिया कोलैप्स क्यों नहीं होता? Why does trachea doesn't collapse? जो सी शेप रिंग्स होती है कार्टिलेज की, जो उसे सपोर्ट देती है। बिल्कुल, जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है वो उसे सपोर्ट देती है। किसी को कुछ पूछना है इसमें? ट्रैकिया वही ना, वो जो वो जो एक डंडी से के ऊपर, हाँ यही डंडी से ऊपर नहीं है, वो विंड पाइप है आपकी। क्या बात करते हो? Summary. देखो क्या है। In the thorax region, the ribcage and the diaphragm are observed, which play a vital role in respiration. Present within the ribcage are the pleural membranes which enclose the lungs.
The right lung consists of 3 lobes. While the left lung has only 2 lobes. Both the lungs are associated externally with bronchi, which unite and extend into the trachea. As we breathe, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. As blood flows through the capillaries, the oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary. This causes oxygenation of the RBCs. The carbon dioxide molecules are released into the alveolus. ठीक है, रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में किसी को कोई डाउट? No, sir.